السلام علیکم ڈیئر چلڈرن، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے سے؟ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ہسٹری آف کمیونیکیشن اینڈ ٹریولنگ. یہی کہا تھا نا ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم آج کی بات کریں گے، ہمارے پاس بہت سارے سسٹمز اویلیبل ہیں، بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوسرا انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو. ہم ان سے اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، چاہے پھر وہ کہاں پر بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ بات ہی نہیں، ہم ان کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کے آمنے سامنے بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ ویڈیو چیٹنگ. اتنا ہی نہیں، اگر ہمیں کوئی گفٹ ان کو بھیجنا ہو، کوئی بھی چیز ان کو بھیجنی ہو تو آرام سے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آج کل کی فیسلٹیز ہے. ٹھیک ہے؟ ٹریولنگ کی بات کریں گے تو ہم آج ہی ایک ہی دن میں کہیں پر بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں دہلی جانا ہو یا پھر کسی اور کنٹری میں جانا ہو، ٹھیک ہے نا، تو آرام سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں پر کوشچن ہے کہ جو 1000 پہلے 2000 پہلے لوگ تھے، انہیں بھی اگر کہیں جانا ہو تو وہ کیسے جایا کرتے تھے؟ انہیں اگر کسی ریلیٹیو کے پاس جانا ہو جو دور ہو، وہ کیسے جایا کرتے تھے؟ انہیں اگر ان سے بات کرنی ہوتی تھی تو وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر ایک کوشچن ہے. ٹھیک ہے نا؟ کل ہم نے یہی کہا تھا کہ انہیں کتنی پرابلمس فیس کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے جو فیسلٹیز آج ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے؟ کل ہم نے کمیونیکیشن اینڈ ٹریولنگ کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہمیں وہی مینز آف کمیونیکیشن پڑھیں گے کہ اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہو تو ہم کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کون کون ذریعہ ہے ہمارے پاس، کون کون مین ہے ہمارے پاس جس سے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جو ہم سے بہت دور ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دھیان رکھیے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے بیٹا، مینز آف کمیونیکیشن، کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سے ایسے ذریعے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے بیٹا، فرسٹ ون از پوسٹل سروس is most common and cheapest means of communication. پوسٹل سروس کی اگر ہم دوسری ایک ٹرم بولیں گے، وہ آپ نے سنا ہوگا، مے بی یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. پوسٹ آفس، آپ نے نام سنا ہے نا؟ پوسٹ آفس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس سے ہم ٹرانسفر کرتے ہیں چیزوں کو، لیٹرز کو، انویلپس کو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی چیز ہمیں یہاں سے دوسری جگہ بھیجنی ہو تو آرام سے پوسٹ آفس تھرو بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پوسٹ آفس آپ نے نام سنا ہوگا. تو وہی پوسٹ آفس، یہ پوسٹل سروس جو ہے نا، یہ وہی سیکنڈ ٹرم ہے پوسٹ آفس کی. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو پوسٹل سروس ہے، یہ ایک بہت کامن ہے اور چیپسٹ مینز آف کمیونیکیشن، سستا ہے بہت. فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو تو آپ کے کوئی بھی بردر سسٹر، کوئی بھی کزن، کوئی بھی ریلیٹیو دہلی میں بیٹھا ہو یا پھر ممبئی میں بیٹھا ہو، انڈیا ہی نہیں بلکہ کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہو، تو آپ کو انہیں کچھ لیٹر سینڈ کرنی ہو. ٹھیک ہے؟ آپ کو انہیں کچھ آئٹمس بھیجنے ہیں، کوئی بھی گفٹ آپ کو انہیں سینڈ کرنا ہے، تو آپ کیسے بھیجو گے؟ مے بی آپ کو انہیں فون کرنا ہے، دیٹ از سیکنڈری، لیکن اگر آپ کو انہیں کچھ چیز بھیجنی ہو تو آپ کیسے بھیجتے ہو؟ وہ آپ پوسٹ آفس تھرو بھیجیے. جو ڈپارٹمنٹ ہے نا پوسٹ آفس، جو گورنمنٹ نے ارینج کیا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر آرام سے جا کر وہاں پر اس لیٹر پر اپنا نام، وہاں کا نام جہاں پر آپ کو سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر کچھ پیمنٹس ہوتے ہیں تھوڑے سے، جو چیپسٹ مطلب ہوتا ہے سستا، بہت کم پیسے آپ کو وہاں پر دینے پڑتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے وہ پروڈکٹس وہاں پر پہنچاتے ہیں جہاں پر آپ کو پہنچانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں جو پوسٹل سروس ہے نا، یہ بہت ہی کامن ہے اور چیپسٹ مینز آف کمیونیکیشن. چیپسٹ ہوتا ہے سستا، مطلب بہت کم پیسے میں آپ اپنا وہ پروڈکٹ، آپ اپنے وہ لیٹر، انویلپس، ویدر کچھ بھی ہو، تو آپ بہت کم پیسے میں وہ اپنے ریلیٹیو تک پہنچا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ انڈیا ہیز دا لارجسٹ پوسٹل نیٹورک ان دا ورلڈ. اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے، اپنی کنٹری کی بات کریں گے، تو اس کا جو یہ پوسٹل سروس ہے نا، یہ بہت لارجسٹ نیٹورک ہے. مطلب یہاں پر انڈیا میں جو یہ پوسٹل سروس جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت بڑا ہے، مطلب یہاں پر اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں پر آپ کو کیا کیا وہاں پر بیچ سکتے ہو، پوسٹل سروسز
थ्रो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, किसी को भी कुछ भी भेज सकते हो। क्या क्या भेज सकते हो? पोस्ट कार्ड भेज सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। इनलैंड लेटर्स आप भेज सकते हो, एनवलप्स आप भेज सकते हो, ठीक है ना, एंड पोस्टेज स्टैंप्स आप भेज सकते हो। ये कुछ थिंग्स हैं वी नीड कम्युनिकेट थ्रू दिस मील, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स एंड postage stamps are those things we need to communicate through this mean। तो क्या कहते हैं, पोस्टल सर्विस के जरिए हम क्या क्या भेज सकते हैं? फिर से एक बार, पोस्ट कार्ड्स भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर्स भेज सकते हैं, इनवलप्स भेज सकते हैं, पोस्टेज स्टैंप्स भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस डिपार्टमेंट थ्रू अपनी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने रिलेटिव्स तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हो। आपको सिर्फ कुछ पैसे वहाँ पर देने पड़ते हैं, जो उसका फी लगता है, किराया लगता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो आपका वो जो प्रोडक्ट है ना, आराम से एंड विद सेफ, ठीक है ना, वो आपका कॉन्फिडेंशियल रहता है, मतलब प्राइवेसी रहती है वहाँ पर, उन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं, वो जैसा आप रखते हो, जैसा आप उन्हें देते हो, वो आराम से वैसे ही उसे विद कॉन्फिडेंशियल आपके रिलेटिव्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अब समझ आया? अर्जेंट मैसेज सेंट टू टेलीग्राम्स और द स्पीड पोस्ट। अब अगर आपको कोई अर्जेंट मैसेज भेजनी हो, ठीक है, देखिए बेटा, ये जो पोस्टल सर्विस, ये जो कुछ चीज़ें आपको अपने रिलेटिव में भी, इन्हें 1-2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इन्हें ले जाना पड़ता है। इन्हें बाय किसी भी ये जो ट्रैवलिंग सर्विस है ना, किसी भी गाड़ी से, एरोप्लेन से, ट्रेन से इन्हें ले जाना पड़ता है वहाँ पर, तो इट टेक्स टाइम। यहाँ पर इन्हें बहुत टाइम लगता है, मे बी कुछ दिन भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे मैम अगर कुछ अर्जेंट मैसेज हमें भेजनी है, तो वहाँ पर तो हमें टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे भेज सकते हैं? देखिए बेटा, अर्जेंट मैसेज सेंड टू टेलीग्राम्स और द स्पीड पोस्ट। कुछ अर्जेंट मैसेजेस जो है ना, जो आपको किसी को बहुत जल्दी पहुंचानी हो, ठीक है, बहुत अर्जेंट है वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर वो पहुंचानी है, तो आप कैसे भेजोगे? वो टेलीग्राम थ्रू भेजते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टेलीग्राम, ठीक है। तो टेलीग्राम थ्रू आप क्या भेजते हो? वो ये कुछ ऐसा ही कंप्यूटर जैसा होता है। टेलीग्राम्स क्या होते हैं? ये कुछ कंप्यूटर जैसा होता है, जहाँ पर आप जाके वहाँ पर कुछ अर्जेंट मैसेज उन्हें देते हो कि ये मुझे इस एड्रेस पर पहुँचानी है बहुत कम टाइम में, तो वहाँ पर वो आपका वो टेलीग्राम वहाँ पर आपके किसी भी रिलेटिव तक पहुँचाते हैं बहुत कम टाइम में। या फिर टेलीग्राम और द स्पीड पोस्ट एक दूसरा है, वहाँ स्पीड पोस्ट थ्रू भी आप वो पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल याद रखा, यहाँ पर मैंने आपको कहा ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये कुछ टाइम ले सकते हैं, बिकॉज इन्हें वहाँ पर ले जाना पड़ता है, ठीक है, थ्रू ट्रैवलिंग सर्विस, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी इंसान को कोई भी अर्जेंट मैसेज भेजनी हो, तो आप बोलोगे मैम किससे भेजेंगे, वहाँ पर टाइम नहीं है आपके पास, तो आप टेलीग्राम थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट थ्रू वहाँ पर उन्हें भेज सकते हो। याद रखा? अब आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने अभी कहा कि लेटर्स, एनवलप्स, इनलैंड लेटर्स, ये हम कैसे, ये जो ये पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस जो है, वो कैसे वहाँ पर पहुँचाते हैं उन लेटर्स को, किस ज़रिए पहुँचाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज वैन्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन हेल्प टू कैरी लेटर्स एंड पार्सल्स टू प्लेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। अभी मैंने आपको कहा कि ये जो कुछ लेटर्स होते हैं, एनवलप्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, जो आपको कहीं ले जाने पड़ते हैं पोस्ट ऑफिस थ्रू, ठीक है, तो वो कहाँ कैसे ले जाते हैं? देखिए बेटा, वो वैनस थ्रू ले जाते हैं, ट्रेन से ले जाते हैं, एरोप्लेन से ले जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरी कंट्रीज़ में ले जाना पड़ते हैं तो एरोप्लेन से, क्योंकि एरोप्लेन से कम टाइम लगता है। अगर अपने ही एक ही स्टेट में ले जाने हो, एक ही डिस्ट्रिक्ट में ले जाने हो, तो वैनस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वैनस ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है ना। अगर एक ही कंट्री में विद इन कंट्री होगा तो ट्रेन से ले जाते हैं, ठीक है ना। तो यही इन्हीं क्या कहेंगे इनको, ट्रैवलिंग सिस्टम है ना, ये सारे ट्रैवल करते हैं ना, तो इन्हीं थ्रू हम ये जो सारे पोस्टल सर्विसेज के चीज़ें हमें ले जानी पड़ती हैं ना, इन्हीं के ज़रिए ले जाते हैं, चाहे फिर वो कंट्री के अंदर ही ले जाने हो या फिर कंट्री के बाहर दूसरी कंट्रियों तक पहुंचाने हो, तो इन्हीं सर्विसेज से पहुंचाते हैं, ठीक है, याद रखा। सो द नेक्स्ट वन इज ईमेल।
पोस्टल सर्विस आपने कहा, पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, वो आपने देखा कि वो कैसे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज ईमेल। क्या है? ईमेल। ईमेल का सेकंड ये जो फुल फॉर्म दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, याद रखा, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, अगर हम आज की बात करेंगे, आज जो है ना बहुत फास्ट ये चल रहा है, ठीक है ना। आज हर जगह पर फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है लोगों के पास, आपको कहीं पर भी कुछ भेजना हो तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन वेट कर सकते हो, तो वहाँ पर क्या कर सकते हो, ईमेल का यूज़ कर सकते हो आप। ये जो ईमेल होता है ना, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो आप। ये आजकल के ज़माने बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखना, ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, अगर हम आज की बात करेंगे, आज के ज़माने की बात करेंगे तो बहुत ही पॉपुलर है। पोस्ट ऑफिस भी पॉपुलर था, लेकिन आजकल पोस्ट ऑफिस का उतना यूज़ नहीं होता है जितना यूज़ ईमेल का होता है। पोस्ट ऑफिस में आजकल ज़्यादा वो काम होते हैं कि अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ भेजनी हो, पार्सल, ठीक है, जो आप किसी को ऐसे, जो आपको किसी के घर पहुंचाने होते हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें, कपड़े, गिफ्ट्स, वॉट एवर, ठीक है, तो वो आप किससे, पोस्ट ऑफिस थ्रू करते हैं। लेकिन चाहे आजकल कोई लेटर हो, कोई मैसेज हो, वो आप थ्रू ईमेल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है। वी सेंड ईमेल थ्रू इंटरनेट, ईमेल के, ईमेल का यूज़ करने में हमें इंटरनेट का यूज़ करना होता है। इंटरनेट बहुत ही मस्ट होता है ईमेल सिस्टम में, ठीक है। अगर हमें इंटरनेट अवेलेबल होगा तभी हम ये ईमेल कर सकते हैं। अगर ईमेल हमें करनी हो फिर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ईमेल करने में, ईमेल किसी को भेजने में इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेट है तो हम ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट ना हो तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज फैक्स, ठीक है। फैक्स इज अनदर क्विक वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फैक्स, फैक्स एक दूसरा सिस्टम है किसका, कम्युनिकेशन का, ठीक है। याद रखा, ये भी हम कैसे करते हैं, जैसे ईमेल फॉर एग्जांपल, ये सारे जो है ना ये थ्रू इंटरनेट होते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है तब आप ईमेल कर सकते हो, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल तब आप फैक्स कर सकते हो। ये सारे थ्रू कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ईमेल भी कंप्यूटराइज्ड होता है, फैक्स भी थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से होता है, और वहाँ पर कंप्यूटर के होने में इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेलीफोनिक नेटवर्क, ये आपको पता है, टेलीफोन, एक दूसरे को कॉल करना, ये आपको पता ही है, पता है ना। सो कनेक्ट्स अस टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा। आपको किसी को फ़ोन कर, टेलीफोन के बारे में आप हर एक को जानकारी होगी, आजकल के बच्चे भी माशाल्लाह फ़ोन बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। सो टेलीफोनिक नेटवर्क, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये हमें कनेक्ट करता है अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से। आपको किसी से भी बात करनी हो आप आराम से कर सकते हो फ़ोन से, ठीक है ना। सो STD, अब टेलीफोन में भी वहाँ पर किस्में होती है। इंडिया में अगर आप बैठे हो विद इन कंट्री, कंट्री के अंदर आपको किसी से बात करनी हो थ्रू STD। STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम। STD आपने सुना होगा, ये कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं जो कहीं पर भी लगी होती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उसका यूज़ कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन उसको छोड़ के हम STD की बात करेंगे। STD जो कहीं पर भी मार्केट में लगे होते हैं, रोड्स पर लगे होते हैं, ये हमारी किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारी ईजीनेस के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल आप कहीं रास्ते पे हो तो आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं है, अब सबके पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं होता है। अब आज की बात छोड़िए, आजकल हर एक के पास अपना फ़ोन होता है, लेकिन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोगों के पास फ़ोन्स, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा फ़ोन अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तब लोग STD का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। STD का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम। S मतलब सब्सक्राइबर, T मतलब ट्रंक, D होता है डायलिंग, ठीक है, और सिस्टम, ये सिस्टम ही है, दैट इज इट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम, ठीक है ना, याद रखा। और ये जो STD होता है ना, ये विद इन कंट्री होता है। STD में जो सिस्टम्स होते हैं ना, वहाँ से आप उन लोगों को सिर्फ फ़ोन कर सकते हो जो आपकी कंट्री के अंदर रहते हो। कंट्री के बाहर जो होते हैं ना, वो इस सिस्टम से नहीं होते, उनके लिए एक अलग सिस्टम बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड ISD सिस्टम। ISD का मतलब होता है, I का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर
डायलिंग सिस्टम। याद रखा, ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम होता है जिससे आप उन लोगों से बात करते हैं जो आपकी कंट्री के बाहर है। फॉर एग्जांपल इंडिया के बाहर है, फॉरेन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, चाइना में है, नेपाल में है, स्विट्ज़रलैंड में है, कहीं पर भी है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हैं? ISD सिस्टम का, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम। याद रखा। तो STD का यूज़ हम कब करते हैं? जब लोग कंट्री के अंदर हो, विद इन कंट्री, ठीक है, नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं लोगों से, ठीक है। एंड ISD का यूज़ हम तब करते हैं जब लोग कंट्री से बाहर होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं। याद रखा। सो दीज आर ऑल पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल मतलब जो बातें आप कर सकते हो ये पर्सनल होता है, मतलब बाकी कोई और नहीं सुन सकता है। जो भी आप बात करोगे ना वो आपके और उनके बीच में रहती है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसको नहीं सुन सकता, ठीक है। ये सारा पर्सनल होता है, मतलब जो भी आप उनसे बात करोगे, जिन्हें आप फ़ोन करोगे, वो पर्सनल है, तो उसे कोई नहीं सुन सकता, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट की परमिशन ना हो तब तक उसे कोई भी नहीं सुन सकता। तो ये जो सारे मीन्स हैं ना ये पर्सनल होते हैं, ठीक है। इन्हें आपके अलावा तब तक कोई नहीं सुन सकता जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, ठीक है ना। सो ये जो सारे थे ना, ये सारे सिस्टम्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है ना। याद रखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अल्लाह हाफिज़।